नमस्कार, सुस्वागतम। स्पीक हेल्थ द्वारा आयोजित डॉक्टर स्पीक में मैं ईशा शर्मा आपकी सूत्रधार आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के ग्लोकोमा पेशेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरे साथ 3 बहुत सुप्रसिद्ध आई डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। चलिए उनका परिचय करवाते हैं। और आज मेरे साथ यहाँ पैनल पर कुछ बहुत ही सुप्रसिद्ध आई डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आज ग्लोकोमा पेशेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ है डॉक्टर सुरजीत चक्रवर्ती, प्रियंवदा बिरला अरविंद आई हॉस्पिटल से, और ये ग्लूकोमा डिपार्टमेंट के हेड हैं। मेरे साथ यहाँ और 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव एंड डॉक्टर कुमार रवि, एंड दे बोथ आर फ्रॉम शंकरा नेत्रालय ग्लोकोमा कंसल्टेंट्स। ডক্টর, গ্লোকোমার ব্যাপারে অনেক কম লোকজনই জানে, তো আপনি কি আমাদের এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন? Well, in one word, glaucoma can be explained as a silent thief of vision. বাংলাতে যাকে বলা হয় দৃষ্টি চোর। এমনই একটা রোগ যেটা কোনো জানান না দিয়েই ধীরে ধীরে আমাদের চোখের দৃষ্টিকে নষ্ট করে দেয়। অপটিক নার্ভ যেটা আমাদের মেন যে চোখের দৃষ্টিকে ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তার মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন আসে এবং এত ধীরে আসে যে পেশেন্ট জানতে পর্যন্ত পারেন না যে তার চোখের দৃষ্টি নষ্ট হতে বসেছে। গ্লোকোমার সাইন্স, সিমটমস এইসব ব্যাপারে বলতে গেলে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো যে বেশিরভাগ সময়তেই এর কোনো চিহ্ন পেশেন্ট আগে থেকে জানতে পারে না, বা এমন কোনো নির্দিষ্ট সিমটম নেই যাতে পেশেন্ট বলতে পারে যে হ্যাঁ আমার গ্লোকোমা হয়েছে। বা ইউজুয়ালি যা হয় বেশ কিছু ভেগ সিমটম, যেমন কেউ কেউ কমপ্লেন করে যে চোখে ভারী হচ্ছে, কেউ কেউ কমপ্লেন করে যে দেখতে গেলে কোনো সময়তে হ্যালোস দেখছে, কিন্তু এগুলো সবই বেশিরভাগ সময়তে কিছু পার্টিকুলার টাইপের গ্লোকোমা আছে তাতে হয়, যেটা একদম সবথেকে বেশি আমরা পেয়ে থাকি প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা। তাতে বেশিরভাগ সময়তে দেখা যায় যে কোনো সিমটম আগে থেকে পেশেন্ট জানতেও পারে না, এবং না জানার কারণেই যখন ধরা পড়ে তখন অনেক সময়তে দেখা যায় যে গ্লোকোমা অনেকটা এগিয়ে গেছে। এবং যেহেতু আমরা জানি যে গ্লোকোমার সারাবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই, গ্লোকোমা যা রয়েছে পুরোটাই আমাদের প্রিভেন্ট করার, মানে যা হয়ে গেছে তার থেকে আর যাতে বেশি না হয় সেই রকম জিনিসের উপায় আছে, কিন্তু গ্লোকোমা সারিয়ে দেওয়ার মতো কোনো উপায় এখনো পর্যন্ত নেই। আর ডিটেকশনের জন্য আমাদের কাছে যা দরকার, প্রথম কথা হলো গ্লোকোমা বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা জানা দরকার। সেটা জানলে তবে মানুষ প্রপার জায়গাতে চেক আপ করাতে পারেন। বেশিরভাগ সময়তেই আমাদের চোখের সম্বন্ধে যা ধারণা, চোখের অসুবিধে সম্বন্ধে, চোখের অসুখ সম্বন্ধে, তা হলো যে আমাদের চোখে কম দেখতে পাচ্ছি, অতএব আমাদের চশমার দরকার, চশমার পরীক্ষার জন্য যাওয়া হলো, এবং চশমার দোকান কিংবা অপটিশিয়ান চশমার পরীক্ষা করে চশমাটি দিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চশমা ছাড়াও যে রেটিনা, গ্লোকোমা এইসব বলে যে ব্যাপারগুলো আছে সেটা যদি আমরা আগে থেকে না জানি, তাহলে আমরা পুরো যে চেক আপ সেটার দিকে যাব না। কজেস বলতে গ্লোকোমার কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, যেমন হাই মায়োপিয়া, মানে মাইনাস পাওয়ার, যেখানে আইবলের সাইজ অনেক বড়, বা ফ্যামিলি হিস্ট্রি, কারোর ফ্যামিলিতে গ্লোকোমা আছে তার ক্ষেত্রেও তার ফ্যামিলি মেম্বারদের গ্লোকোমা জন্যে পার্টিকুলারলি চেক আপ করানো দরকার। ডায়াবেটিস মেলাইটিস, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর কোনো চোট লাগলে, কোনো যদি কারোর দীর্ঘদিন কোনো কারণে স্টেরয়েড থেরাপি নিতে হয়েছে, সেরকম ক্ষেত্রে গ্লোকোমা স্ক্রিনিং অত্যন্ত জরুরি। आँख का एक शेप मेंटेन करने के अंदर से प्रेशर होता है। नॉर्मल प्रेशर इज अप टू 21, नॉर्मल है, सभी का होता है अप टू, किसी का कम किसी का ज़्यादा, बट अप टू 21 इज नॉर्मल। अब किसी पेशेंट का अगर सडनली प्रेशर बढ़ रहा है, लाइक ही सेड, 2 तरह के ग्लोकोमा प्राइमरली होते हैं, एक ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल में इट इज़ अ साइलेंट डिजीज, पता नहीं चलता है पेशेंट को, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है, धीरे धीरे कोई चेंज होगा बॉडी में तो पता नहीं चलता। वैसे ही आँख का प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ता है, मालूम नहीं पड़ता है। बट एक डिजीज है एंगल क्लोजर, उसमें सडनली प्रेशर फ्रॉम 20 इट बिकम्स 40। तो जब 40 हो जाएगा प्रेशर तो सडनली आँख में पेन होगा, सडनली यू डोंट सी, अगले दिन सुबह में उठे और दिखाई नहीं दे रहा, या फिर शाम में देखना बंद हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, एंड यू विल हैव इंटेंस पेन, बहुत दर्द होगा आँख में। सो दैट इज अ वैरायटी जिसमें पता चलता है, वो डिजीज खुद बोलता है कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम ग्लोकोमा, अदरवाइज इट इज साइलेंट डिजीज। जैसे कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लोगों को बीपी हो जाती है, हाई बीपी, वैसे ही अगर आँख का प्रेशर बढ़ जाए, आई प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो उसको रफली हम लोग ग्लोकोमा बोल सकते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि आई की प्रेशर अगर बढ़ भी जाती है तो लोगों को पता नहीं चलता है।
80 to 90% लोगों को पता ही नहीं चलेगा, काफ़ी अंदर में डैमेज होती जाएगी आईज़ में। प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा दिन तक ज़्यादा रहता है तो धीरे धीरे वो नर्व को डैमेज करता है, सुखा देता है, और जब नर्व डैमेज होती है तो हल्के हल्के असर आते हैं ब्लाइंडनेस के, साइड विजन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, थोड़ी साइड में देखने में दिक्कत आती है, बट ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसकी वजह से ज़्यादा पता नहीं चलता है। बहुत कम लोगों को होता है, कभी थोड़ी आँख के आसपास दर्द होती है, या देखने में थोड़ी बहुत रेनबो जैसी कलर दिखती हैं, या थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन 80 to 90% लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है, और ओवर द ईयर्स धीरे 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 करके आँख की नर्व में प्रॉब्लम्स आती है, आँख की नर्व सब लोग लोकली बोलते हैं सूखने लग जाती है। डॉक्टर प्रशांत, क्या ग्लोकोमा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर उससे पेशेंट्स को क्या परेशानियाँ होती हैं? तो फर्स्ट की जो भी पेशेंट है जो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, जैसे उन्होंने बोला जब फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा है, किसी घर में किसी को ग्लोकोमा है, पापा को है, मम्मी को है, या ब्रदर को है ग्लोकोमा, तो दोज पेशेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लोकोमा। या कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है आँख की, उसके बाद थोड़ा धुंधला दिख रहा है, या कोई चोट लगा है आँख में, तो वैसी चीज़ों में आप यू आर अंडर द रिस्क ऑफ डिजीज़। तो बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। एक 40 साल के उम्र के बाद एक नॉर्मल टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन, दैट इज इसेंशियल फॉर एवरीबडी। तो सब लोग को जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए कंप्लीट आई चेकअप, नॉट ओनली द ग्लास चेक। ग्लास जो है दैट चेक्स ओनली द रिफ्लेक्शन, आँख में पावर कितना है, उसके अलावा आँख का प्रेशर कितना है, बाकी ग्लोकोमा ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होता है ग्लोकोमा में, उसका स्टेटस क्या है, रेटिना का स्टेटस क्या है, वो सब भी चेक कराना जरूरी है साल में एक बार। तो आई थिंक कोई अगर पेशेंट, कोई भी पर्सन अगर नॉर्मल चेकअप कराता है तो डिजीज़ बहुत अर्ली स्टेज में मालूम पड़ जाएगी, तो डिजीज़ अरेस्ट हो जाएगी। हम में से बहुत लोग साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो जब हम लोग साइकिल या गाड़ी पर हैं और ड्राइव कर रहे हैं या चला रहे हैं, तो हम लोग को देखना होता है सामने की तरफ। हम सामने देखते हैं और सामने हमारे रोड होता है, रोड पे पब्लिक खड़ी है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, वो उस पर नज़र रहती है। बट उसके साथ साथ हमारा थोड़ा नज़र साइड्स पे भी रहता है कि धीरे धीरे सपोज कर लो साइड विजन हमारी कम होने लग जाए, और धीरे कम हो जाए, और धीरे कम हो जाए, तो क्या होगा, सिर्फ हम रोड को देख पाएंगे, साइड की चीज़ें नहीं देख पाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में अगर मैं रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ तो दाईं बगल से कोई व्हीकल आए चाहे बाईं से आए, तो क्या होगा, मुझे नज़र ही नहीं आएगा और एक्सीडेंट होने की चांस बढ़ जाए। कुछ और प्रॉब्लम्स है जो कि सामने के विजन का होता है। मैं सामने देख रहा हूँ, सपोज मैं ग्लोकोमा पेशेंट हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, बट मुझे नीचे की चीज़ें नहीं दिख रही, और मैं वॉक कर रहा हूँ, सडनली वहाँ पर सीढ़ियाँ आ गई या स्टेयर केस आ गया या कोई गड्ढा आ गया, तो वो मुझे नज़र नहीं आएगा, तो चांस है कि मैं गिर सकता हूँ, मैं टकरा सकता हूँ, दरवाजे पर गिर गया या गड्ढे में गिर गया, इस तरह की इवेंट्स होती है। डॉक्टर कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किस प्रकार के लोगों को बहुत रिस्क होता है ग्लोकोमा होने का, किस प्रकार के लोग प्रभावित होते हैं ग्लोकोमा से? ग्लोकोमा का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हुआ एज या उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ग्लोकोमा का रिस्क अपने आप से बढ़ता जाता है। उसके अलावा जिन लोगों को हाई पावर का चश्मा है, आइदर माइनस पावर या प्लस पावर, उनको भी ग्लोकोमा का टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर, थायराइड आई प्रॉब्लम, बीपी और अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी ग्लोकोमा होने के चांसेस थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे स्टेरॉयड की दवाई, बहुत सारे लोग एलर्जी के लिए मलहम लगाते हैं, बहुत सारे लोग आई में कुछ ड्रॉप यूज़ करते हैं स्टेरॉयड डोप एलर्जी के लिए, उन तरह के, या एस्थमा के लिए बहुत सारे लोग इनहेलर्स का कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, उन लोगों में ग्लोकोमा डेवलप होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कभी अगर कोई आंख में चोट लगी हो, बचपन में फुटबॉल खेलते या क्रिकेट खेलते या किसी भी तरह का अगर चोट लगा हो, तो उन लोगों में ग्लोकोमा बढ़ने का या फिर डेवलप होने का चांस रहता है। अगर आई का ऑपरेशन हुआ हो पहले, किन्हीं लोगों में कई बार आई का ऑपरेशन होता है, उससे भी ग्लोकोमा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जिनकी फैमिली में ग्लोकोमा है, उन्हें ग्लोकोमा का चांस हमेशा दूसरों से ज़्यादा रहेगा। एक पेशेंट अगर उनको ग्लोकोमा है तो उनके भाई बहन या जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनका हमेशा टेस्ट होना चाहिए और उनमें ग्लोकोमा के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसी तरह से जो पेरेंट्स हैं जिनको ग्लोकोमा है, उनके बच्चों में भी ग्लोकोमा होने का चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। কিছু মানুষের গ্লোকোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যেমন যদি কারোর মায়োপিয়া বা হাই মাইনাস পাওয়ার কারোর থাকে, বা কারোর সুগার, থাইরয়েড ডিজিজ এরকম এই সমস্যাগুলো থাকে, কারোর যদি দেখা যায় যে তার ফ্যামিলিতে গ্লোকোমা হওয়ার হিস্ট্রি আছে, কারোর যদি চোখে কোনো চোট লেগে গিয়ে থাকে আগে। So 2 or 3 years back, in the glaucoma screening, glaucoma week program, we both had we did a campaign, screening campaign in our own hospital. So what we did screening of all the staff who are working in our hospital. So there are people who are working there for years, 5 years, 10 years, but they never went for any comprehensive eye checkup.
So what came as a surprise was around, I think, 5% of the population or the staff were working there. So that was around 20 patients, 20 लोगों को glaucoma था उसमें. So 20 people were suffering from glaucoma, and they are working in the eye hospital, and they were not aware of the disease. So finally, they are under active treatment. So this is the proportion of the disease which is there, and people are not aware of the fact. डॉक्टर्स, ग्लोकोमा रोगियों के लिए किस प्रकार के ट्रीटमेंट सबसे अच्छे होते हैं? उस प्रेशर को डाउन करने का हमारे पास 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम उसको मेडिसिन दे देते हैं। हमारा आई एक बॉल की तरह है जिसमें पानी बन रहा है और वो पानी बाहर जा रहा है, और अगर वो पानी कम बाहर जाएगा तो आँख के अंदर पानी जमा होगा और आँख के प्रेशर को बढ़ाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसी दवाई देते हैं ताकि पानी कम बने और प्रेशर कंट्रोल में रहे। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग लेज़र करके उस पानी के फ्लो को बढ़ा देते हैं ताकि जितना पानी बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, वो फ्लो ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगी। लेज़र से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये पहला और दूसरा काम ना करे तो हम उसको ऑपरेशन के द्वारा भी ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में क्योंकि अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं और लेज़र भी अच्छा काम करता है, तो वो लास्ट ऑप्शन है, और जब ये काम नहीं करेंगे तो ऑपरेशन करके ग्लोकोमा को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जिससे कि हम लोग ग्लोकोमा को थोड़ा अपने तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, टी या ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना कुछ हद तक हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो ग्लोकोमा को ज़रूर थोड़ा बढ़ाता है। दूसरी चीज़ें जैसे योगा में कुछ पोस्चर्स हैं, जैसे शीर्षासन हुआ, ये बहुत टफ एक्सरसाइज। कुछ लोगों को हैबिट होती है पानी पीने की, 1 लीटर लगातार पानी पिए। देखिए 1 लीटर नॉर्मल आदमी पानी पिए तो कुछ नहीं होगा, बट अगर किसी को ग्लोकोमा की टेंडेंसी है या ससेप्टिबिलिटी है या फैमिली हिस्ट्री है और वो डेली ऐसा कई सालों तक कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका ग्लोकोमा पे खराब असर पड़े। तो इन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है कि वो इन चीज़ों में इंडल्ज ना करें या इससे थोड़ा दूर रहें। बाकी जो सामान्य एक्सरसाइज होती है, जो सामान्य चीज़ें होती है, वो करने में प्रॉब्लम नहीं है। বা যে এক্সারসাইজের সময়তে মাথা নিচু পা উপরে এরকম কোনো পজিশন, যেমন উদাহরণস্বরূপ বললো যে শীর্ষাসন, আরেকটা উদাহরণ হলো সর্বাঙ্গাসন, যেখানে পা উঁচু মাথা নিচে থাকে, সেইখানে ব্লাড ফ্লো নিচের দিকে এসে চোখের প্রেশার বাড়াতে পারে। সেই আসনগুলো অ্যাভয়েড করা দরকার। এবং যে এক্সারসাইজ, যেমন কোনো এক্সারসাইজে বলা হয় যে নিঃশ্বাস নিয়ে ধরে রাখুন, 30 সেকেন্ড ধরে রাখুন, 1 মিনিট ধরে রাখুন, তারপরে নিঃশ্বাস ছাড়ুন, এরকম এক্সারসাইজগুলো গ্লোকোমার পক্ষে হানিকর। আমরা যাই করি আসলে আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে পেশেন্টের জীবনে যেন কখনো অন্ধত্বের অভিশাপ না আসে। আমাদের সমস্ত চিকিৎসার মেন লক্ষ্যই হলো চোখের প্রেশার কমানো নয়, চোখটাকে ভালো রাখা। अगर किसी पेशेंट का कंप्लीट चेकअप होगा तो उसे कभी भी ग्लोकोमा या किसी अन्य प्रॉब्लम की वजह से तुरंत ब्लाइंडनेस हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। लेकिन कंप्लीट चेकअप ज़रूरी है। हम डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शन पूरा फॉलो करोगे तो आप जिस लेवल पर ग्लोकोमा को लेकर के आए हो, हम पूरी लाइफ आपको उसी लेवल पर मेंटेन करते हुए जाएंगे, उसे और कम नहीं होने देंगे। Doctors, can children also be affected by glaucoma? Is it possible that they can also get glaucoma? বাচ্চাদের একদম জন্মগত গ্লোকোমা, যাকে কিনা কনজেনিটাল গ্লোকোমা বলা হয়, এই নামে একটা জিনিস আছে। অনেক সময়তেই পেশেন্টের বাবা মা ভাবে যে খুব সুন্দর বাচ্চা হয়েছে, বেশ বড় বড় কালো চোখ, ব্লু আইড বেবি। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে দেখা যায় যে বাচ্চার কালো চোখ কেননা চোখের জন্ম থেকেই তার চোখের প্রেশার বেশি, যে প্রেশারের প্রভাবে চোখের কর্নিয়া তার সাইজ বড় হয়ে যাচ্ছে এবং পেশেন্টের বাচ্চার চোখটাকে বড় বলে মনে হচ্ছে। সেরকম হলে আপনাদের সবাইকে বলে রাখি, বাচ্চাকে অবশ্যই কোনো অপথলমোলজিস্টের কাছে একবার অবশ্যই নিয়ে যাবেন। যদি দেখা যায় যে সেই বড় চোখ কোনো স্বাভাবিক কারণে নয়, সেটা গ্লোকোমার জন্যে, তার মেন চিকিৎসা হলো সার্জিক্যাল, যেটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তত তাড়াতাড়ি করা দরকার। কাজেই জন্মগত গ্লোকোমার যখনই কখনো সন্দেহ হবে অবশ্যই কাউকে দেখিয়ে নেবেন একবার। और इसमें दिस इज मोर सीरियस डिजीज दैन एडल्ट ग्लोकोमा। बहुत जल्दी बढ़ता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो होता है ग्लोकोमा वो स्पोरेडिक बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कि अचानक से किसी को भी हो सकता है, वैसा होता है। हम 40 इयर्स के अबव या बड़े लोगों में तो छोड़िए, कभी कभी बाय बर्थ जब बच्चे पैदा होते हैं डे 1 या डे 2 उनको भी ग्लोकोमा हो सकता है, यानी कि बच्चे माँ के पेट से ही ग्लोकोमा के साथ ही पैदा होते हैं। इसे हम लोग कंजेनाइटल ग्लोकोमा बोलते हैं। जब भी कभी लगे कि बच्चे की आँख थोड़ी बड़ी है या कलर थोड़ा डिफरेंट है तो उसे बेटर होता है एक बार डॉक्टर से दिखा लेना अच्छा होगा, क्योंकि इन ग्लोकोमास का ट्रीटमेंट पहली बात पॉसिबल है,
अगर करते हैं तो बच्चों को नियर नॉर्मल विजन हम दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर प्रेशर हाई रहेगा और अगर लेट हो गई तो फिर हम वापस उस डैमेज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम आँख को खो दें, लेकिन ध्यान रखना है कि वो हमारी गलती होगी। जैसे कि उनमें आँख जैसे नीला होगा, ब्लू आइज होंगे, बड़ा होगा नॉर्मल से, साइज़ बड़ा होगा, कॉर्निया बड़ा होगा, और बच्चे लाइट को नहीं टॉलरेट कर पाते। लाइट अगर शो करोगे टॉर्च से तो वो हेड टर्न कर लेंगे, आँख बंद कर लेंगे, और ये सब चीज़ें होती हैं। इससे मालूम पड़ता है कि प्रेशर हाई हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है। और एक चीज़ की सर्जरी तो ऑब्वियसली एनेस्थीसिया के अंदर होगी, इतने छोटे बच्चों में तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो बहुत लोगों का परसेप्शन होता है कि एनेस्थीसिया देना ही बहुत रिस्की है, रिस्क होता है, और पर आज के ज़माने में एनेस्थीसिया भी बहुत एडवांस हो गया है। तो वैसे बच्चों को आराम से सेफली किया सकता है एनेस्थेटाइज, और अच्छा रिकवरी होता है। रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ডক্টরস আমাদের ভিউয়ার্সের জন্য আপনাদের ফাইনাল মেসেজ কি হবে? একই জিনিস আমি বলবো, আমাদের এই প্রাত্যহিক সমস্যা সংকুল জীবনে গ্লকোমা নামক সমস্যাকে অত গুরুত্ব দেওয়ারও দরকার নেই, যদি শুধু এইটুকু মনে রাখেন যে সময় মতো ড্রপ দিতে হবে, সময় মতো ডাক্তারকে দেখাতে হবে। जो भी पेशेंट्स या तो ग्लोकोमा उनकी फैमिली में है या अगर उनको है, तो मैं एक सिंपल सा एक मैसेज देना चाहूँगा, दे कैन लिव विद ग्लोकोमा। वो आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ग्लोकोमा के साथ जी सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं कि नियर नॉर्मल लाइफ लीड करना पॉसिबल है। जो भी प्रॉब्लम है आपको, यू मस्ट डिस्कस विद अ डॉक्टर, बी ड्रॉप्स और फॉलो अप और इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। अगर वो टेस्ट नहीं कर सकते, दूसरा टेस्ट है, दैट कैन बी डन। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कहीं भी कुछ नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन खुला है। सो आई थिंक एनी प्रॉब्लम यू मस्ट डिस्कस विद अ डॉक्टर। डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच हमारे इस ग्लोकोमा पेशेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे पेज को भी सब्सक्राइब कर लें। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, टेक केयर।